Morning 8th class. This is 7th chapter of science and this is third video of the same chapter, conservation of plants and animals. तो यहाँ से रीड करेंगे forest reserves. Forest reserves are portion of state land where commercial harvesting of wood products is excluded in order to capture element of biodiversity that can be missing from sustainably harvested sites. तो जंगलों को रिजर्व कर दिया गया है जहाँ से हम लकड़ी वगैरह कुछ नहीं लेंगे. Small patch reserve will conserve sensitive localized resources such as steep slopes, fragile soil and habitat for certain rare species that benefit from intact forest canopy. अब वहाँ पर जंगल आराम से रह सकते हैं, जो जीव जंतु आराम से रह सकते हैं, मिट्टी वहाँ पर आराम से बनी रहेगी. Large reserves will represent the diversity of relatively unfragmented forest landscape remaining in Massachusetts today. Matrix reserves will ultimately support a wider diversity of tree size and ages than typically occurs on sustainably harvested sites. Will also support structure and processes associated with extensive accumulation of large woody debris that are typically obtained from harvested site. तो क्या होता है यहाँ पर तरह तरह के पेड़ पौधे सब उगेंगे जो कि हम उगा भी नहीं सकते हैं ऐसे और यहाँ पर वो सुरक्षित भी रहेंगे. आगे देखेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ नेचुरली अकरिंग सेंचुरी सच एज एन आइलैंड दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फॉर वाइल्ड लाइफ स्पीसीज फॉर हंटिंग, predation, competition or poaching. It is a protected area, a geographical territory within which wildlife is a protected refuges can preserve animals that are endangered. तो अब यहाँ पर क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है एक छोटा एरिया, जंगल से छोटा एरिया जहाँ पर जानवर रहते हैं और ये जो है आइलैंड भी हो सकता है और यहाँ पर शिकार वगैरह करना मना होता है. ठीक है. Such wildlife refuges are generally officially designated territories. They are created by government legislation, publicly or privately owned. तो ये publicly या privately owned होते हैं, इन पर लोगों का अधिकार होता है. ठीक है, इनके अंडर में आते हैं ये. Unofficial sanctuaries जो है can also occur as a result of human accident. The Cannoville exclusive zone has in practice become a wildlife refuge since very few people live in the area. तो कुछ जगह पर क्या होता है जहाँ लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, तो वहाँ पर भी जानवर आकर रहने लग जाते हैं, तो वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन जाती है. फिर सेंचुरी इज़ एन एरिया विच इज़ ऑफ एडिकेट इकोलॉजिकल, फेनुलर, floral, geomorphological, natural or zoological significance. The sanctuary is declared for the purpose of protecting, propagating or developing wildlife or its environment. Certain rights of people living inside the sanctuary could be permitted. Further, during the settlement of claims before finally notifying the sanctuary, the collector may, in consultation with the chief wildlife warden, allow the continuation of any right of any person in any over any land within the limits of sanctuary. तो यहाँ पर किसी का जाना वैसे नहीं अधिकार है, किसी को जाने का, ना किसी को शिकार करने का, पर अगर कुछ लोग वहाँ पहले से रह रहे हैं तो उनको कुछ अधिकार मिलते हैं और वो वहाँ पर रह सकते हैं अगर वहाँ का जो वार्डन है, जो हेड है, वो अलाउड कर दे तो. आगे देखेंगे नेशनल पार्क. National park an area set aside by a national government for the preservation of the natural environment. A national park may be set aside for purposes of public recreation and enjoyment of because its historical or scientific interest. Most of the landscape and their accompanying plants and animals in national park are kept in their natural state. नेशनल पार्क मतलब बच्चों जंगल ही हो गया, तो सरकार द्वारा इसको रिजर्व कर दिया जाता है जानवरों के लिए और वहाँ पर जो है अच्छे से एंजॉय करते हैं जानवर. ठीक है. और लैंडस्केप वगैरह भी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ देखने को हमें मिलते हैं और नेचुरल स्टेट में एकदम नेचुरली. ठीक है. 1969 में IUCN ने ये नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर करे थे कि क्या किन किन चीज़ों पे कि कौन होगा कब नेचुरल पार्क. तो वन और सेवरल इकोसिस्टम नॉट मैटेरियली अल्टर्ड बाय ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन एंड ऑक्यूपेशन वेयर प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जियोमॉर्फोलॉजिकली sites and habitats are of special scientific, educational and recreational interest or within contain a natural landscape of great beauty. तो नेचुरल लैंडस्केप हो, ग्रेट ब्यूटी हो, वहाँ पर जानवर रहते हो, ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन वहाँ पर ना हो, ह्यूमन का आना जाना ना हो, कोई ऑक्यूपेशन ना करे ह्यूमन वहाँ पर, तो वो नेशनल पार्क है. Highest competent authority of the country has taken steps to prevent or eliminate exploitation or occupation as soon as possible in the whole area and to effectively enforce the respect of ecological, geomorphological or aesthetic features which have led to its establishment.
तो वहाँ पर कोई भी इंसान जाकर के काम नहीं करेगा, पेड़ नहीं काटेगा, कुछ भी अपना रोज़गार के लिए वहाँ पर नहीं जाएगा, ठीक है। और उसको रिस्पेक्ट देंगे हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को वहाँ पर, और उस एरिया को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। विजिटर्स आर अलाउड टू एंटर अंडर स्पेशल कंडीशंस फॉर इंस्पायरेशनल, एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिक्रिएटिव पर्पस। तो अगर कोई घूमने जाना चाहता है किसी पढ़ाई के मकसद से, किसी रिसर्च के मकसद से, तो उसको जाना अलाउड है कुछ नियम कानून के बाद। तो 1971 में जो ये क्राइटेरिया था इसको और क्लियर बना दिया गया। कैसे? तो मिनिमम साइज ऑफ 1000 हेक्टर्स विद इन जोन इन विच प्रोटेक्शन ऑफ नेचर टेक्स प्रेसिडेंट, तो 1000 हेक्टर का एरिया होना चाहिए। स्टैट्यूटरी लीगल प्रोटेक्शन देनी चाहिए इसको। बजट और स्टाफ सफिशिएंट टू प्रोवाइड सफिशिएंट इफेक्टिव प्रोटेक्शन, तो वहाँ पर स्टाफ भी होता है, अच्छा बजट भी बनाते हैं, पैसे वगैरह भी खर्च करते हैं ताकि उस जंगलों को प्रोटेक्शन दे सके। प्रोहिबिटेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, तो वहाँ पर कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं जो है एक्सप्लॉयट करेगा, यानी कि कुछ भी ख़राब नहीं करेगा, ना कि बाढ़ बनाएगा, कुछ नहीं, बांध नहीं बनाना, कुछ नहीं करना वहाँ पर। तो क्वालिफाइड बाय एक्टिविटीज़ एज स्पोर्ट, हंटिंग, फिशिंग कुछ नहीं होगा। नीड फॉर मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं वहाँ पर करना है, ना हंटिंग, ना फिशिंग, ना कुछ। जूलॉजिकल पार्क्स एंड बोटेनिकल गार्डन, अब ये क्या होते हैं जूलॉजिकल पार्क्स और बोटेनिकल गार्डन्स? तो जूलॉजिकल पार्क्स आर रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ विच डिनोट्स द लार्ज एंड पॉपुलर एनिमल्स, तो यहाँ पर पॉपुलर एनिमल्स रहते हैं टाइगर, एलिफेंट, डियर, क्रोकोडाइल, वेल्स। वाइल्ड लाइफ इज रिलेटेड टू एनिमल्स एंड देयर नेचुरल हैबिटाट्स, इट हेल्प अस टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। तो वाइल्ड लाइफ जो है नेचर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स सेवरल वुड प्रोडक्ट्स, वुड हमें देता है, रेनफॉल लाता है। इट प्रोवाइड्स एशियाटिक वैल्यू एंड गिव्स अ बूस्ट टू इंडिया कल्चर, इंडिया के कल्चर को, आर्ट को, लिटरेचर को बढ़ावा देता है। सो वाइल्ड लाइफ शुड बी कंजर्व्ड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, तो वाइल्ड लाइफ को बचा के रखना चाहिए। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आया 1972 में, इससे वाइल्ड लाइफ को बचाना स्टार्ट कर दिया गया। इट स्टार्टेड दैट किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ विदाउट सस्टेबल कंसेंट इज पनिशनेबल अंडर द लॉ। तो अब अगर जानवरों को आप मारते हैं बिना किसी सॉलिड रीजन के, तो वो आपको सज़ा मिलेगी। जम्मू एंड कश्मीर इज़ द ओनली स्टेट इन इंडिया वेयर दिस लॉ इज़ नॉट वैलिड, जम्मू कश्मीर में नहीं है ये वैलिड, बाकी हर जगह है। नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में। जूलॉजिकल पार्क इज डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड इट्स टाइम कंज्यूमिंग, इट रिक्वायर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क। जूलॉजिकल पार्क को मेंटेन करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत हार्ड वर्क, नॉलेज और एक्सपीरियंस लगता है। देयर आर मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जूलॉजिकल फैक्टर्स विच इंक्लूड सेक्शन ऑफ साइट should be approachable, well trained with lots of trees, animals for the park, public amenities like restaurant, car parks, toilet, तो यहाँ पर ये सब होना चाहिए क्योंकि वहाँ लोग घूमने भी आते हैं। रेगुलर इलेक्ट्रिक और वाटर सप्लाई भी होना चाहिए यहाँ पर, पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए, स्टाफ रहने वगैरह की जगह, ठीक है। कैश इंसेंटिव स्टाफ को मिलना चाहिए यहाँ पर। आफ्टर द पार्क इज एस्टेब्लिश, जब ये पार्क बन जाए तो एम्फेसिस शुड बी ऑन मेंटेनेंस, तो यहाँ के रख रखाव पर भी बहुत ज़्यादा दबाव आता है। इट इज़ टेडियस एंड एक्सपेंसिव प्रोसेस, तो ये बहुत खर्चे वाली प्रोसेस है। प्रॉपर वेटरनिटी हेल्थ केयर शुड बी प्रोवाइडेड, तो हेल्थ के लिए भी ध्यान देना चाहिए जानवरों का भी। ऑल द एनिमल मस्ट बी वैक्सीनेटेड, सारे जानवरों को सुई लगनी चाहिए ताकि अगर वो किसी को काट भी ले तो कोई नुकसान ना हो। केस हिस्ट्री रिकॉर्डेड मस्ट बी मेंटेन। अ प्रॉपर केयर ऑफ एनिमल मस्ट बी टेकन विद एडिकेट फूड एंड मेल फीमेल रेशो, तो मेल फीमेल रेशो बरकरार रहना चाहिए, कितने मेल हैं उस एरिया में, कितने फीमेल जानवर हैं, और उनको जो है खाने वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी सफाई को लेकर व्यवस्था होनी चाहिए। इरेगुलर ग्रास एरिया मस्ट बी ट्रिम्ड एंड शुड बी रेक्टिफाइड, तो ग्रास वगैरह साफ़ होती रहनी चाहिए, कटती रहनी चाहिए घासें। एंड अट्रैक्टिव होर्डिंग अलॉन्ग विद प्रॉपर साइन बोर्ड होना चाहिए हर जगह की, यहाँ पर आपको ये जानवर मिलेंगे, यहाँ से दाएँ मुड़े बाएँ मुड़े। अ लिटरेचर और एनिमल इन द पार्क मस्ट बी देयर विच शुड हेल्प इन एजुकेशन एंड रिसर्च प्रोडक्शन, तो लिटरेचर होना चाहिए ताकि वो वहाँ पर आने वाले लोगों को बता सके जानवरों के बारे में। देयर आर नंबर्स ऑफ इंपॉर्टेंट जूलॉजिकल पार्क्स इन इंडिया, और भारत में बहुत सारे जूलॉजिकल पार्क्स हैं। अ बोटेनिकल गार्डन इज प्लेस वेयर प्लांट स्पेशली फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लोइंग प्लांट्स आर ग्रोन, तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है जहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे उगते हैं और दिखाए जाते हैं लोगों को रिसर्च और एजुकेशन के लिए। दिस डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम पार्क्स एंड प्लेजर गार्डन वेयर प्लांट्स यूजली विद ब्यूटीफुल फ्लावर्स आर ग्रोन फॉर पब्लिक एम्यूनिटी, तो नॉर्मल पार्क से अलग जगह होती है, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन दैट स्पेशलाइज इन ट्रीज आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज अर्बोरेटा, इसको अर्बोरेटा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ बहुत सारे पेड़ होते हैं। दे आर ओकेजनली एसोसिएटेड विद जू, इनको कई बार जू से भी मिलाया जाता है कि हाँ ये भी चिड़ियाघर की तरह ही है। बोटेनिकल गार्डन जो नासिक में है वो फर्स्ट काइंड ऑफ पार्क बना था ऐसा कंट्री में, और एक ही है साउथ ईस्ट एशिया में जो कि बहुत यूनिक लेज़र शो है।
प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? As the number of tigers is decreasing day by day, we need to take preventive measures to save them from getting extinct. Numerous efforts are being carried out to save their species, and Project Area is an important movement aimed at the conservation of tigers in India. The habitat required by the tiger should be made proper, and any cutting of trees in that area should be avoided. Being the national animal of India, it's our duty that we safeguard the wildlife properly. Many projects taken by India has led to a decrease in the population of tiger. Many conservation areas were created to make sure that no human could enter the area to do any harm to the tiger or its habitat. Project Tiger was first initiated in the year April 1st, 1973 and it's still going on. 1973 में चीतों को, टाइगर्स को बचाने के लिए क्या चलाया गया? एक अभियान चलाया गया कि इससे जो है टाइगर्स के एरिया में कोई जा ना पाए, वहाँ के पेड़ पौधे ना काट पाए और वहाँ के जानवरों को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। ठीक है, एक मूवी भी है शेरनी करके विद्या बालन की, आप चाहो तो देख सकते हो, वो भी टाइगर्स के ऊपर है और अच्छी मूवी है। तो उसमें भी टाइगर्स को बचाने के पीछे वो विद्या बालन होती है। तो इस तरीके से पेड़ों उससे उन्हें हमें बचाना चाहिए क्योंकि वो लुप्त हो रहे हैं, बहुत धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। This project was started to save tigers. The much needed project was launched in Jim Corbett National Park, Uttarakhand under the leadership of इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने ये स्टार्ट करा था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? नेशनल जो है प्रोजेक्ट टाइगर का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी इसका मेन मकसद क्या है? तो इसका मकसद है कि सेविंग रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम गेटिंग एक्सटिंक्ट। तो रॉयल बंगाल टाइगर को ख़त्म होने से बचाना। द मेजर कॉज ऑफ देयर डिप्लीशन इज ह्यूमन एंड सो ऑल कंजर्वेटिव एरिया मेड ह्यूमन फ्री। दे मेड श्योर दैट द प्लेस द टाइगर लिव्ड इन ऑल्सो सेफ एंड सिक्योर। तो ह्यूमन ही उसको डराते हैं, भगाते हैं, मार देते हैं डर के मारे, तो इसलिए ये इंश्योर कराता है कि वहाँ कोई इंसान न रहे और वो जगह सेफ और सिक्योर हो जानवरों के लिए। Project Tiger has been successful in increasing the population of the tigers. The number increased from 1200 to around 5000। तो पहले 1200 थी संख्या टाइगर्स की, पर अब 5000 हो गई है, तो यानी कि फ़ायदा हो रहा है इससे। Project team has been doing its work with full dedication and all national parks are putting efforts in doing the project. There are around 50 नेशनल पार्क्स और सेंचुरी बनाई गई है इस प्रोजेक्ट के लिए, जो जानवरों को संभाल कर रखती है और सच में इससे वो बहुत मन लगा के काम करते हैं और इससे फ़ायदा भी दिख रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे, अ कम्युनिटी ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स, फीड, रिप्रोड्यूसेस एंड इंटरेक्ट्स, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, उसको इकोसिस्टम कहते हैं। रेड डाटा बुक क्या है, ये पढ़ लेते हैं बच्चों। The Red Data Book is a type of a public document which is created for the recordings of endangered and rare species including plant, animal, fungi as well as some local subspecies which are present within the region of the state or country. The Red Data Books help us in providing complete information for research study and also for the monitoring of the programs on rare and endangered species and their habitat. This book is mainly created to protect those species which are on the verge of extinction, lost, harmed or not able to continue their life cycle. Their species are कैन इधर भी एनिमल्स, बर्ड और प्लांट। तो रेड डाटा बुक क्या है बच्चों, उसमें नाम दे रखे हैं उन जीव जंतुओं के जो ख़त्म होते आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि कोई भी इंसान उसको पढ़ सकता है, देख सकता है कि कौन सी जातियाँ ख़त्म हो रही हैं, तो इस पर स्टडी कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। अगर वो उसे कहीं देखने को मिले तो सरकार को बता सकता है। ठीक है, रेड डाटा बुक कंटेन्स कलर कोडेड इन्फॉर्मेशन शीट्स विच आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द डेंजर स्पीसीज। द ब्लैक कलर शीट फॉर स्पीसीज विच आर एक्सटिंक्ट, रेड कलर शीट फॉर स्पीसीज दैट आर मोर डेंजरस, amber colored for those species which is getting attacked by other species, white colored for very rare species, green colored for non-dangerous species and grey color for species that are intimated to be vulnerable, endangered और rare। तो अलग अलग कलरों से दिखाया जा रहा है कि कौन से जानवर खतरे में हैं, कौन से जानवरों पर दूसरे जानवर अटैक कर रहे हैं, कौन से जानवर ख़त्म हो गए हैं, कौन से जानवर ख़त्म होते आ रहे हैं। तो कलर के हिसाब से उसको डाला गया है। द एक्सटीन डेंजरस, अननोन एंड नॉन डेंजरस जो है 3 मेन कैटेगरीज है। ठीक है, जो नहीं जानते, जो बिल्कुल ख़तरनाक नहीं है और जो ख़तरनाक है। अपार्ट फ्रॉम द स्पीसीज डेंजरस, इसके अलावा ये बुक जो है इन्फॉर्मेशन देती है किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में भी, ट्रेंड और रेंज के बारे में भी, किसकी कितनी संख्या है जानवरों में, कितना किसका क्या हिस्सा है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी 3rd वीडियो। आगे का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा।